2 केक बने थे, एक केक मैंने बनाया था और एक उन्होंने बाय किया था। उनका केक जो था, जो बाजार से केक आया था, दैट केक वाज टू हार्ड, और मेरा केक जो बना था दैट वाज टू सॉफ्ट। एंड मतलब आप मानेंगे नहीं कि मीन्स पूरा का पूरा उनका केक बच गया था और मेरा हम्म। पूरा खत्म हो गया था। छोटा सा केक था लेकिन फिर लोगों ने वही केक खाया। मेरे बेटे ने वो सबसे हाईएस्ट बेकरी जो थी वहां की, सबसे कॉस्टलीस्ट बेकरी, वहां से केक मंगाया था। और आई वाज इट वाज अ ग्रेट कॉम्प्लीमेंट फॉर मी, एंड Absolutely. कि मेरा केक बहुत अच्छा बना था, अदर देन दैट बिगेस्ट केक बेकरी। Absolutely. Hi everyone, we are here to do yet another Hall of Fame interview with my amazing and awesome super baker and now a diamond member, Neeraji. Neeraji started her journey just a few months ago, and let's hear it from her because she has now crossed a massive revenue of already 1 lakh rupees from her home bakery. So over to you, Neeraji. Um, tell us briefly tell us briefly about yourself. Like, how was your life before you came into this community? Hi everyone, I'm Neera Manmohan, and I'm actually from Mumbai, but now no, now I'm based in Delhi for a few years because my husband got a temporary assignment in Sri Ram Institute of Industrials, and he's a deputy director. I have two kids. One is a son and one is a daughter, and both are doctors. My daughter is a physiotherapist, and my son is a dentist. They are based outside India. One is in New Zealand, one is in USA. And both my children are the big force to push me to this thing, which I'm doing nowadays. And my son, my husband, he's the big force to give me money and everything, making me comfortable to do all these things. And he's never says, तुम ये क्यों कर रही हो, why you are not giving me food, मेरा खाने का टाइम हो गया, या वो मैं ऑफिस आया हूँ मुझे चाय चाहिए, या वो, he never says to me. So always my family is a big force, जिसकी वजह से मैं आज इस Lovely. यहाँ पर हूँ और मैम के सामने बैठी हूँ और अपना हॉल ऑफ फेम का इंटरव्यू दे रही हूँ। एंड उससे भी So, नीरा जी एक एक मेरे दिमाग में अभी एक सवाल आ रहा है कि you said both your kids are doctors and they are very well settled. Plus, your husband is also a professor, right, in a reputed institute. साइंटिस्ट मैम। Yeah, he's a scientist. Amazing, lovely. So, what made you choose this path of baking? Actually, baking was my passion. Means not my, Mm, it was my hobby actually. Now it's mm, become my passion. mm. It was my hobby, and I used to bake a lot. Means a few things and all. On my 50th birthday, my husband gifted me oven because I was Oh, baking in a small, very small oven, round wala जो wow. था वो था मेरे पास। And Huh. gifted me Philips Murphy Richards Oh, 28 liters. So he was okay. saying कि in the long run I will go and do this thing. So he said अगर मुझे पता होता तो मैं तुमको बड़ा वाला ओवन गिफ्ट करता। So sweet of him. So, Neera ji, matlab, तो baking, matlab, what was your profession as well? If you can share something about that. Were you a housewife or were you a working professional? I'm by profession, I'm a fitness counselor. I was in this same profession for last 25 years. So I worked for Bhabha Atomic Research Center. Yeah, I was working there for 20 years. And then after that, when my husband took this appointment and he came to Delhi, so मुझे job छोड़ना पड़ा. And Hmm. I really miss Mumbai uh, because दिल्ली का कल्चर और मुंबई का कल्चर इज टोटली डिफरेंट। Yeah. मैं मुंबई को बहुत मिस करती हूँ। बट द थिंग इज कि मैं जब फिटनेस काउंसलर थी तब भी मैं बेकिंग करती थी, छोटा Yeah, because that is a very unusual combination, right? Fitness counselor and baking. या
सो बट लोग मुझे मेरा केक बहुत पसंद करते थे एंड पीपल यूज्ड टू टेल मी हमारे लिए बना दो, हमारे लिए ये कर दो, या वाओ! यू टेक क्लासेस, तुम बहुत अच्छा केक बनाते हाँ। हो। हुँ, बट हुँ, the thing is when I came to DVA or when I started my journey here and as a super baker, जब मैंने ज्वाइन किया और जब मैंने वो पहला केक बनाया तो आई थॉट आई वाज टोटली फेल्ड बिफोर, ओह! मुझे वो आता ही नहीं था केक बनाना, जबकि लोग बोलते थे कि ये केक बहुत अच्छा बना है। ओह वाओ! सो आई वाज़ अबाउट टू आस्क दैट कि अगर आपको पहले ही बेकिंग आता था और लोग इतने खुश थे, तो आपने फिर ये ऑनलाइन बेकिंग अकेडमी जो है हमारा डीवीए, वो फिर क्यों जॉइन किया? वो जॉइन किया क्योंकि मुझे 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 उसका बेसिक तो नहीं पता था ना, मैं तो यूट्यूब से देख के कर लेती थी या फिर हुँ, बुक से पढ़ के कर लेती थी या फिर हुँ, अल्लाह दलाल के कभी-कभी वो देखती थी, तो वीडियोज़ देखती थी तो बना लेती थी। लेकिन हुँ, मैंने प्रोफ़ेशनली कभी भी ऐसा सोचा नहीं था कि मैं प्रोफ़ेशनल बनूँगी और मैं कभी ऐसे 1 डेढ़ लाख रुपया कमा पाऊँगी इस चीज़ से। पर the only thing is when I started this, I first cake when I made, uh, हुँ, I was totally means I was totally I don't have words means मैं इतनी खुश हो गई थी कि ये वाओ! इतना अच्छा केक भी बनता है जो मैंने इतने सालों से बनाया। मैं एग वाला केक बनाती थी तो वो थोड़ा फिर भी ठीक बनता था, बिना एग का केक तो कभी मेरा अच्छा बना ही नहीं। तो आई वाज़ फिर भी लोग मुझे बोलते थे कि बहुत अच्छा केक बनाती है, तो मैं आई वाज़ थिंकिंग कि लोग मुझ झूठी बड़ाई करते थे कि भई हाँ, तुम्हें बहुत अच्छा केक बनाना आता है। सो जब मैंने पहला एगलेस केक बनाया और वो केक बहुत अच्छा बना और इट वाज़ हैविंग वेरी गुड जाली एंड एवरीथिंग मीन्स बहुत अच्छा उसमें टेक्सचर आया, तो मुझे लगा कि अरे यार! मुझे तो केक बनाना ही नहीं आता था, मैं तो पहली बार केक बनाया एक्चुअली। तो हुँ, that was the thing that all the credit goes to दीप्ति मैम। सो उन्होंने जो जो तरीका बताया एंड फर्स्ट टाइम आई हैव कम टू नो, जब भी मैंने माने यूट्यूब पे देखा या व्हाटएवर वहीं कहाँ पे भी देखा तो दे यूज्ड टू टेल मिडल रैक पे रखना है केक हुँ, बनाने के लिए। हुँ, फर्स्ट टाइम मुझे पता चला कि मिडल रैक पे कभी नहीं रखना है, उसको फर्स्ट रैक बॉटम मोस्ट रैक रख के और उसको केक को बनाना है। ये बहुत बहुत बड़ी चीज़ थी जो कि मुझे मेरे शायद मेरा केक बनने में बहुत मुझे हेल्प किया अच्छा केक बनाने में। और वाओ! मेरे हस्बैंड को चॉकलेट केक बिल्कुल भी पसंद नहीं है और हाँ, जब मैंने चॉकलेट केक पहला चॉकलेट केक बनाया एंड आई पुट गनाश ऑन दैट एंड आई हाँ, सर्व्ड हिम एंड ही वाज़ सो हैप्पी कि इतना अच्छा केक मीरा आज तक तुमने नहीं बनाया। सो आई वाज़ सरप्राइज़्ड, मैंने बोला आपको तो अच्छा नहीं लगता चॉकलेट केक? नहीं, ये इतना टेस्टी है कि मुझे बहुत अच्छा लगा है। तो मैंने बोला हुँ, इसका मतलब मैं पहले बहुत गंदे केक बनाती थी इसीलिए आपने कभी पसंद नहीं किया। ही सेड नहीं, नहीं ऐसी बात नहीं है बट ये केक बेट बहुत अच्छा बना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सो हाँ, दैट वाज़ अ बिग कॉम्प्लीमेंट फॉर मी एंड आई थिंक फॉर यू मैम कि मैंने बहुत अच्छा केक बनाया। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली दैट इज़ अ वेरी बिग कॉम्प्लीमेंट फॉर अस क्योंकि मतलब ऑफ कोर्स हमारा रेसिपी यूज़ किया है, राइट? आपने और जो भी स्ट्रैटेजीज़ इम्प्लीमेंट करे और जो रिजल्ट्स आए हैं, तो जैसे मैं बोलती हूँ कि स्टूडेंट्स को रिजल्ट आए हैं, तो मुझे भी रिजल्ट आए हैं, राइट? तो जब भी आप सक्सेसफुल होंगे, तभी डेफिनिटली मैं भी सक्सेसफुल बनूँगी। बट मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ दैट कि फैमिली वाले जो नहीं खाते हैं या जो नहीं पसंद करते एक टिपिकल टाइप का केक, if that person gives this kind of a feedback, then of course, right, anybody will think yes, I have conquered that big milestone in my baking journey. So नीरा जी, आप हमें ये बताइए कि कभी आपको चैलेंजेस फेस हुए थे? क्योंकि देखो हमारा तो ऑनलाइन है, राइट, जो आप सीख रहे थे सुपर बेकर में आने के बाद भी, अम, कि लाइव सेशंस है या फिर रेसिपीज दिए हैं या जो भी है, जो कम्युनिटी है, डिड यू फेस एनी काइंड ऑफ चैलेंजेस एज अ सुपर बेकर? चैलेंजेस मैम ऐसे तो कोई चैलेंजेस नहीं आए थे। जब सुपर बिगर मैंने जॉइन किया था तो मेरे को लगता है कि मैंने आई थिंक 20 डेज़ में ही डायमंड जॉइन कर लिया था और हाँ, उसके बाद फिर मैंने जो किया उसके बाद आई थिंक मैंने पीछे मुड़ के देखा नहीं है, लेकिन द ओनली थिंग इज़ कि शायद मेरा इंटरेस्ट जो है वो ड्राई केक्स और कुकीज़ हाँ, में ज़्यादा है और ब्रेड ज़्यादा। ज़्यादा है, तो मेरा उस वो चीज़ें बहुत अच्छी आती है, जबकि मेरे लवली।
जो केक्स का डेकोरेशन है वो इतना अच्छा नहीं होता है। दैट करेक्ट, करेक्ट। दैट बट द कि अभी मैंने जो लास्ट 2 केक बनाए एज़ अ असाइनमेंट्स, मैंने वो केक 4 बार बिगाड़े और 5वीं बार वो केक मेरा ठीक बना है और वो बट यू डिड नॉट गिव अप। हाँ, मैंने वो अभी डाला है 6 मंथ्स चैलेंज में। हाँ, रिव्यू के लिए। वो मेरा 5 बार केक खराब 4 बार केक खराब हुआ है, 4 बार और 2 मैंने 2 बार 3 बार केक बनाया है वो। एक पहली बार बनाया उसको डेकोरेट किया वो अच्छा नहीं बना, फिर दूसरी बार बनाया, दूसरी बार भी वो केक खराब हो गया था। हुँ, हुँ, सॉफ्ट बहुत सॉफ्ट था और वो खराब हो गया और दूसरी हुँ, बार फिर मैंने केक बनाया तो मैंने उसमें थोड़ा कम सिरप डाला ताकि वो हाँ, सॉफ्ट ना हो एंड हाँ, वो दूसरी बार जो मैंने केक बनाया उसको डेकोरेट किया वो नहीं अच्छा बना, वो वाह! डेकोरेशन नहीं अच्छा हुआ। सो मैंने ऐसे करके 4 बार उसको डेकोरेट किया, चौथी बार में जब वो मतलब थोड़ा ठीक हुआ, तो मैंने बोला नहीं मुझे परफेक्ट चाहिए करके हुँ, 5वीं बार जब वो किया, तो बाय गॉड्स ग्रेस वो बहुत अच्छा बना, बहुत अच्छा केक बना और बहुत अच्छा और मतलब मुझे खुद को ही लग रहा था कि ये केक मैंने ही बनाया। एग्ज़ैक्टली। तो माय हस्बैंड वाज़ आल्सो टेलिंग कि तू परफेक्ट हो रही है। अब By the way, how much is your revenue at this moment? आई थिंक इट इज़ 2,45,000 और Wow, 50 lovely, awesome. And we are adding so many orders and so many revenues every single week, right? So I know that recently you crossed 50,000 rupees a month. Yeah, that too in New Zealand, people are giving you order. That was like a such a big proud moment for me. made cake for my granddaughter's birthday, and then I got around 4 or 5 orders for immediately on even on the spot on of Wow, party. lovely. So 3 cakes I made, and Huh, one person that they were means they are New Zealand citizen means mm, people, white people. She lady came to me and she said कि now you will make all the cakes for our birthdays. तो oh, wow. दो केक्स वर 2 केक बने थे, 1 केक मैंने बनाया था और एक उन्होंने बाय किया था बट Huh, मोंकी इसमें उसमें उसका उनका केक जो था, जो बाज़ार से केक आया था दैट केक वाज़ टू हार्ड और मेरा केक जो बना था दैट वाज़ टू सॉफ्ट एंड huh, पी मतलब आप मानेंगे नहीं कि मीन्स पूरा का पूरा उनका केक बच गया था और मेरा mm, पूरा खत्म हो गया था। छोटा-सा केक था लेकिन फिर लोगों ने वही केक खाया एंड wow. वी वर हैप्पी टू से दैट कि योर केक वाज़ बेटर देन द अदर बेकरी केक एंड मेरे बेटे ने वो सबसे मीन्स हाईएस्ट बेकरी जो थी वहाँ की सबसे कॉस्टलीएस्ट बेकरी वहाँ से केक मँगाया था। और Wow. आई वाज़ इट वाज़ अ ग्रेट कॉम्प्लीमेंट फॉर मी एंड Absolutely. कि मेरा केक बहुत अच्छा बना था अदर देन दैट बिगेस्ट बेकरी। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली इट इज सच अ बिग कॉम्प्लीमेंट क्योंकि यहाँ पे आप सीख रहे हो वो भी ऐसे पैशन बेस्ड आप कुछ सीख रहे हो फिर आपने उसका फिर उसको आपने बिजनेस में कन्वर्ट किया आफ्टर दैट यू आर गोइंग टू अ डिफरेंट कंट्री ऑल टुगेदर एंड वहां पे व्हेन पीपल आर रिकॉग्नाइजिंग योर टैलेंट दैट एब्सोल्युटली नीड्स टू बी सेलिब्रेटेड फॉर श्योर। लास्ट हम मैंने आने से पहले अटेंड किया था एमएमपी सेशन जो मैंने न्यूजीलैंड में अटेंड किया था। दैट क्लास आई हैव अटेंडेड इन द कार या ट्रैवलिंग टू हैमिल्टन एंड हाँ तब वहाँ पर वो क्लास वो जो चल रहा था तो वो मेरे फ़ोन पे नहीं चला तो उसमें मेरे सन ने चला के दिया मुझे स्पीकर पे। तो फ़ोन पे कार में यू नो दैट स्पीकर ऑफ होता है और पूरी कार सबको सुन तो मैंने बोला तुम सब सुनोगे? तो बोला हाँ, सुनेंगे हम लोग भी सुनेंगे, क्या बोलते हैं आपके मैम? तो मैंने बोला कि चलो ठीक है सुनो। जब उन्होंने सुना एंड माय डॉटर इन लॉ सेड कि दीदी मम्मी आपकी टीचर तो मीन्स इज़ शी अ बेकर और अरे फिटनेस कोच? तो वो तो फिटनेस कोच से भी ज़्यादा अच्छा आपको बता रहे हैं इसके बारे में, हर चीज़ के बारे में एंड ऑल एंड मैंने बोला कि वो शी वांट्स एवरीबॉडी टू बी healthy and happy and out of any stress
वो जो भी काम कर रहे हैं वो करें। तो इसलिए वो हमें ये सब एक क्लास देती हैं महीने में, और वो क्लास रियली में लोगों को हेल्पफुल हो रही है। तो बोलती है आई कैन अंडरस्टैंड, लोगों को तो फ़ायदा होगा ही इससे। मैंने पहली बेक कोच देखी है, जो कि आपको इस तरह के क्लासेस दे रही है, एंड यू आर रियली lucky to have this kind of coach with you. Thank Thank you so much. you. And thanks to you, all credit goes to you. And जब मैंने उन ये बात, मेरे बच्चे जब ये सोचते हैं कि मैं आगे इस चीज में क्या करूं, तो माय डॉटर इन लॉ शी सेड कि जब आप यहाँ आओगे तो वी विल स्टार्ट, आई विल डू ऑल योर मार्केटिंग एंड एवरीथिंग। Wow. Start the work here. First, we will start from home, and then we will start a cafe over there. मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी इस चीज को प्रोफेशन की तरह से यूज करूंगी। मैंने सोचा Hmm. था घर के लिए सब बच्चों को, और मुझे रियली में फ्रैंकली मैम मुझे ये पता भी नहीं था कि ये जो आप जो कोचिंग कर रही हैं, आप जो बता रहे हैं हमको, ये बेकिंग करने के बाद में आप हमको प्रोफेशनली भी बताएंगे कि हम प्रोफेशन कैसे शुरू कर सकते हैं, ये आप बताएंगे। नहीं पता था ये बात, मुझे कुछ भी नहीं मालूम था, मुझे आई वाज ब्लैंक। जस्ट मुझे ये पता था कि मुझे बेकिंग सीखना है और अच्छे से बेकिंग सीखना है, ये सोच के मैंने जॉइन कर लिया था। और जब मैंने जॉइन किया और उसके बाद स्लोली स्लोली इट स्टार्टेड, एंड वी स्टार्टेड गुड बेकिंग एंड गुड डेकोरेशंस एंड गुड ये, फिर उसके बाद स्टार्ट हुआ बिजनेस। मतलब मुझे Hmm. लगे हमने बिजनेस भी करना है। तो स्लोली 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 जब आपने बिजनेस स्टार्ट का हमें मीन्स नॉलेज देना शुरू किया कि आप बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं और कैसे आप आगे आ सकते हैं, कैसे आप, देन व्हेन आई आस्क्ड सम पीपल nearby me, my family members and all everything. You know, first order which I got, that I got from my family only. Wow. डायमंड में आने के 10 दिन के बाद ही आई अप्लाइड फॉर माय FSSAI सर्टिफिकेट। Yeah. Within 10 days, I got my FSSAI certificate also. And once my FSSAI certificate came, I was sure. Now, अब तो certificate है, so now I can do business now. So then I started with that. Then I told people, I made my website and Google Pay Dala and everything I did after that. And slowly, I started getting orders, and मुझे other than Flipkart orders, I was getting company orders. Yeah. The corporate orders, I was getting more. Super. Diwali, I got gift hamper, and then I got on Christmas. मैक्सिमम मैसिव जो मुझे जिसके लिए मैं आज यहाँ बैठी हूँ, दैट आई गॉट फ्रॉम क्रिसमस ऑर्डर्स ओनली। आई गॉट 85,000 rupees in one fifth, just for that, and that is the main reason why I'm sitting here. Lovely. आफ्टर दैट तो मेरा एनर्जी इतना बूस्ट हुआ कि मुझे लगा कि अब मैं बहुत बहुत कुछ कर सकती हूँ। व्हेन आई गॉट माय सुपर बेकर अवार्ड, आई केम देयर एंड आई जस्ट लेफ्ट विद ओनली वन सुपर बेकर चैलेंज, जो जिसकी वजह से मेरा डायमंड सर्टिफिकेशन रह गया था, जो मैं नहीं कर पाई थी बिकॉज ऑफ माय हेल्थ प्रॉब्लम्स। Yeah. सो मैं नहीं कर पाई थी, and I was totally depressed, and in the beginning I was sitting in the first row, and Yeah. I was sitting on the last row because मुझे मेरा मन बिल्कुल टूट गया था कि मुझे मेरे सारे फ्रेंड्स को मिल रहा है, सारे मेरे जितने भी मेरे साथ काम कर रहे थे, जितने भी मेरे साथ थे लोग, सबको डायमंड सर्टिफिकेशन मिला और मुझे नहीं मिला। तो आई वाज टोटली ब्रेक्ड, एंड बहुत टूटे हुए मन से मैं वापस दिल्ली आई थी। पर आते ही मुझे मेरे हस्बैंड ने पूछा, ऐसा क्यों, इतना क्यों डिप्रेस्ड हो रही हो? कोई बात नहीं, मिल जाएगा नेक्स्ट टाइम सही। मैंने बोला सिर्फ एक अगर मैं कर लेती तो शायद मुझे मिल जाता, और मैं 2 अवार्ड लेके आती थी अभी। तो ही सेड कोई बात नहीं, जैसे तुम्हें हॉल ऑफ फेम नहीं मिला, हॉल ऑफ फेम तुम ट्राई करो, और उसके साथ डायमंड भी ट्राई करो, यू विल गेट नेक्स्ट टाइम। सो Awesome. सेड ओके। मैंने फिर देन उसके बाद मैंने नेक्स्ट MMT सेशन जब ज्वाइन किया, उसके बाद मुझे एक बड़ा बूस्ट मिला, एंड आई स्टार्टेड मिलेनियर सेशन, एंड देयर दैट आई जॉइंड, एंड यू टोल्ड अस कि आप
डायमंड ज्वाइन करो एंड ऑल। तो मैंने आपसे पहला क्वेश्चन यही पूछा था कि क्या हम सुपर बेकर मतलब सिल्वर मेंबरशिप है तो हमें गोल्ड गोल्ड मेंबरशिप ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, हम डायमंड में सीधा जा सकते हैं। तो आपने बोला हाँ हम्म, आप जा सकते हो, यू हैव यू इफ यू हैविंग स्किल्स यू विल डेफिनेटली एक्सपेल देयर। So I joined Diamond, and I think I never regret for that. I will definitely say thanks to you, and thanks for being means you are a very good coach and you are a very sweet person. आप थोड़े जब हार्ड होते हैं तब थोड़ा डर तो लगता है, लेकिन बट दैट इज फॉर अवर गुड, आई नो दैट, बिकॉज मैं मदर हूँ। एज अ मदर मैं अपने बच्चों के लिए डिसिप्लिन मदर रही हूँ, और बिग कॉम्प्लीमेंट मेरा बेटा यही देता है कि आप हमारे बच्चों के साथ आके रहो एंड बी ए डिसिप्लिन मदर, ग्रैंड मदर, सो दैट मेरे बच्चे हमारे हमारे बच्चे भी हमारे जैसे बने। सो absolutely, उन वो भी कुछ बन सके। आज आज हम जो हैं वो आपके डिसिप्लिन की वजह से ही है। सो lovely. फील की जो यू आर जस्ट अ मॉम टू अस। जब आप हमें थोड़ा डिसिप्लिन रखेंगी तभी हम लोग डिसिप्लिन रहेंगे, नहीं तो कोई भी कुछ भी करता है, आई नो दैट। एंड जब मैं डायमंड में आई तो मुझे थोड़ा डर तो लगा कि मैं इतना इतना सब कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, इतना बड़ा कोर्स है, इतना बड़ा आपने पूरा हमें वेबसाइट में इतना बड़ा कोर्स दिया था एंड ऑल 13 मॉड्यूल्स वर देयर। तो मैं सोच रही थी कि मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी इसको। तो सबसे जो हार्ड मुझे लगता था लगा वो है आई थिंक फॉन्डेंट Hmm. एंड शुगर फ्लावर्स। Hmm. these both are hard to me, but other with Hmm. other than that मैंने किसी में भी मुझे मुझे कुछ इतना प्रॉब्लम नहीं रही। और आई थिंक फॉन्डेंट इज नॉट मेड फॉर मी, मैं Hmm. नहीं कर सकती हूँ उसको। आई थिंक Please, हो सकता है कि whole ज्यादा idea प्रैक्टिस। of giving you so many modules is the same thing, right? Just to help you figure out ki what are you good at, and you do business only in that area, right? So, like I said earlier, I was so happy when you figured it out that dry bakes are for you, and over there only, like you just tried one recipe, right? That plum cake, rum cake recipe, and for the Christmas hamper orders, just by doing that one recipe, if you have got 85,000 rupees in just that one order, right? You have actually found out what is that true niche that you should be focusing on right now. So that is what is diamond membership is all about. It will make you realize what business you can do, um, what is that skill that you should definitely focus on, where you are skilled. And I'm very happy that you were able to figure that out, and in spite of giving you so many modules, right? Like you said, people keep on giving so many excuses, ye hai wo hai, but in your case specifically, like you are a grandma, right? You do not have ऐसा मतलब कि चलो मुझे पैसा कमाना है, ये करना है, वो करना है, कुछ नहीं था। इट वाज जस्ट सिंपल प्योर पैशन बेस्ड, मुझे कुछ करना है, हॉबी करना है। एंड देन द काइंड ऑफ माइंडसेट शिफ्ट दैट यू हैव शेयर्ड थ्रू योर स्टोरी, that is like really mind blowing, because you kept on taking your own decisions, you kept on working on your skills. There were scenarios where you also fell down कि अरे मुझे एक ही award मिला, I should have got the other award as well. You are upset, but that was the point when you realized that you are made for something bigger than this. You kept working on that, and that made you a person who is not sitting on a revenue of 2 lakh plus, right? So again, now in this BBR, you are not just getting one award. You'll be going away with two awards again, right? So it is like three awards you have already got. So it is such a beautiful and inspiring story that you have shared with us, Neeraji. I'm super happy to have you as our community member. Any last two words that you would like to share about DVA? Why should people join DVA? जो लोग भी डायमंड ज्वाइन करेंगे, मुझे नहीं लगता कि कभी वो इस चीज के लिए रिग्रेट करेंगे। थोड़ा मीन्स वी आर पेइंग समथिंग एंड वी आर गेटिंग इवन 4 टाइम्स 5 टाइम्स बेटर मोर देन दैट जो भी हम पे करते हैं। जो बाहर में हम बाहर अगर हम एक भी कोर्स छोटा सा भी कोर्स ज्वाइन करते हैं तो वी हैव टू पे लॉट ऑफ मनी, एंड दे आर गिविंग जस्ट दैट मच ओनली, जो कि उन्होंने जिसके लिए उन्होंने हमें माने बोला है कि हम ये कोर्स कराएंगे।
but the only thing, only DVA is giving us more and more than what they say. Means Mm. आपने जो हमें कोर्स दिया है, कोर्स के अलावा एमएमपी सेशंस एंड बिजनेस के टूल्स और बिजनेस कैसे हमें आगे बढ़ाना है, मार्केटिंग कैसे करना है एंड व्हाटएवर मीन्स जो भी हमारा हमारे एक अच्छा बिजनेस सेटअप करना है, उसके लिए जो कुछ भी चाहिए वो आप हमें दे रहे हैं। मीन्स वी आर नॉट चार्जिंग फॉर दैट, यू आर चार्जिंग फॉर योर जस्ट अ स्मॉल कोर्स कि भई हाँ, आप ये करा रहे हैं। लेकिन उसमें हर चीज़ है, हर चीज़ है। एक-एक मॉड्यूल है जिसमें कि हम मुझे लगता है कि if someone really wants to make use of that, I have done आपने जो whatever recipes you have given, from that also I have made Yeah, 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 absolutely. So thank you so much, Neeraji, for sharing your beautiful story. And all of you all who are watching this story, if you are inspired by this story, make sure that you like this video and share this with someone who needs to definitely get into baking. Thank you so much, Neeraji. God bless you.